Okay, children, we are going to do the exercise part of English lesson grammar. Okay, I think you have gone through this lesson, right? You learned the lesson, right? Okay, so now what we are going to do is we will do the exercise part. Okay, comprehension. Actually, here we have some questions. I have sent you the answers. Okay, you can write it on your copy, and here we have some words. Okay, talk about the picture, who is doing what. Okay, here we have some pictures, and we have some clues here, words here. What you have to do is we have to match the activities by this word. Okay, and his name is Anil. What is he doing? He is posting the letter. Okay, so Anil is posting. So what we have to do, we can write over here Anil posting. Okay, got it. Okay, then the next, girls. So what the girls are doing? Yes, girls are playing. Playing, playing. Girls are playing. Then we have one more thing. Here we have Pratap. What Pratap is doing? Yes, Pratap is. So what is the word to find? Here, bringing, posting, fishing, right? Okay. Here you have to write Pratap is fishing. Okay, it's going out. So I'll write here. You can write behind. Okay, fishing. Okay, Pratap is fishing. Then down here, who is driving? Yeah, this Geeta is driving. Okay, and what else? Mr. Hunit. What is he doing? Waving. Okay, just waving his flag. Okay, then who else? Then mother is bringing. Bring, bringing. Okay, so posting means letter डालना. Okay, letter डालने का अर्थ है. जैसे मान लो अभी पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, लेटर लिखकर पोस्ट बॉक्स होती है उसमें डाल देते हैं, उसको कहते हैं पोस्टिंग. ओके, और प्लेइंग मीन्स खेलना. ओके, हम लोग गेम खेलते हैं ना, तो उसके लिए कहते हैं प्लेइंग, गर्ल्स प्लेइंग. एंड मछली पकड़ते हैं बच्चे. ये क्या कर रहा है? प्रताप मछली पकड़ रहा है, तो इसका नाम क्या है? फिशिंग. मछली पकड़ने के लिए क्या कहते हैं? फिशिंग. और गाड़ी चलाना, इट इज ड्राइविंग. सही अगेन, ड्राइविंग. गाड़ी चलाने के लिए क्या कहते हैं? ड्राइविंग. यू कैन टेल, आप लोग भी बोल सकते हैं मेरे पापा इज ड्राइविंग. ओके, देन मदर ब्रिंगिंग. चाय चाय लेकर आते हैं ना, तो उसके लिए कहते हैं ब्रिंगिंग. Okay, so these are the activities, so it is just for our understanding. Okay, and here look at the picture again and give short answer. See, नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग क्या करना है, इसका आंसर देना है. ओके, पिक्चर देकर उसका आंसर यहाँ पर लिखना है. सो फॉर एग्जाम्पल, इज गीता ड्राइविंग ए कार? यस, शी इज. सी, गीता इज ड्राइविंग, सो यस she is. हाँ, she is driving car, चला रही है. Okay, and here one more thing, next one, is Anil catching a fish? Who is catching a fish? Pratap is catching a fish. So what we have to write is, इधर अनिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए no, he is not. Anil, no, he is not. Means
ये नहीं कर रहा है, अनिल क्या कर रहा है, लेटर पोस्टिंग कर रहा है, तो यस ही इज नॉट। ओके, देन आर द गर्ल्स ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी? नो, गर्ल्स क्या कर रहे, प्ले कर रहे, खेल रहे, तो नो, नो दे आर नॉट। नॉट हियर हम ये भी ऐड करके बता सकते हैं, दे आर नॉट ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी। हियर ऑल्सो हम इनके साथ भी लिख सकते हैं, नो ही इज नॉट कैचिंग फिश। ओके, दे आर नॉट bringing a cup of tea. Okay, and here also हम लोग लिख सकते हैं, he is not catching a fish। और ज्यादा लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, no he is not catching a fish but he is posting a letter। it become very longer। okay, पूरा लिखने का जरूरत नहीं, अनिल लेटर पोस्ट कर रहा है इसलिए वो फिश नहीं पकड़ रहा है। इज मदर पोस्टिंग ए लेटर? यहाँ मदर क्या कर रही है, मदर ब्रिंगिंग। ओके, सो इसलिए यहाँ क्या लिखना है, इज मदर, मदर लेटर पोस्ट कर रही है, नो, नो she is not posting a letter। got it? okay, ऐसे लिखना, no she is not posting a letter। ओके, ये लेटर पोस्ट नहीं कर रही है। इज मिस्टर पूरी वेविंग ए फ्लैग? या ये वेविंग मीन्स आगे पीछे दिखाना, ठीक है। यस, यस मिस्टर पूरी वेविंग ए फ्लैग। यस मिस्टर पूरी वेविंग ए फ्लैग। गॉट इट? ओके, अभी आगे यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल। ओके, नेमिंग वर्ड्स। सो हियर नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल। सो नेमिंग वर्ड मीन्स क्या है? सो नेमिंग वर्ड मीन्स एक व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए, किसी साधन के लिए हम नाम रखते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। ओके, किसी व्यक्ति को स्पेसिफिकली बताने के लिए, अभी मान लो ये क्या है, ये अभी यहाँ पर उदाहरण में लिखा है जेसिका इज अ गर्ल, सो जेसिका इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, ये गर्ल का नाम क्या है, जेसिका, सो दैट इज अ नेमिंग word। and Brian, okay, Brian is a boy, so this is a naming word। okay, the words in italic are naming words। okay, they are names of people। okay, ये लोगों की नाम है इसलिए इसको नेमिंग वर्ड कहते हैं। और ग्रैंडमा इज अ वुमन। ओके, हम कॉमनली सभी औरतों को वुमेन कहते हैं, लेकिन ये क्या रिश्ता में आती है, ग्रैंडमा इज अ नेमिंग वर्ड, मीन्स उसका जो स्थान है, उसका जो क्या बोलते हैं, जो रिलेशन जो है उसको हम कहते हैं ग्रैंडमा, ठीक है। और मिस्टर कॉल इज अ मैन। सभी लोगों को आदमी कहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर आदमी का नाम जो है उसको हम कहते हैं मिस्टर कॉल इज अ मैन। सो जैसे आप लोगों के नाम होते हैं, ठीक है, अभी आप लोग सारे गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, लेकिन अलग अलग अपना नाम होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। हमारे नाम को, हमारे जो मतलब कि हमारे पर्सनली हमारे बारे में बताने के लिए जो नाम है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ये नेमिंग वर्ड कह सकते हैं। ओके, हियर हमें कुछ नाम दिया गया है, तो हम लोग क्या करना है, फाइंड द नेमिंग वर्ड फॉर पीपल इन द फॉलोइंग। हियर मतलब कि एक एक सेंटेंस में एक एक नेमिंग वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या नेमिंग वर्ड किए हैं।
फर्स्ट वन आई विल डू, बाकी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हियर गोपी एंड हेमा क्लाइंबिंग अ हिल, ओके। हियर which one is the naming word? So gopi is a naming word, hema also naming word, ओके। ये दोनों किसी का नाम को दर्शाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये भी नेमिंग वर्ड है, समझ गया? बाकी नहीं है, ठीक है। और नीचे दे गो टू द हाउस इन देयर फ्रेंड रंजन, इसमें कौन सा नेमिंग वर्ड है? आप लोग फाइंड आउट करके उसमें अंडरलाइन करना, ठीक है। इन द आफ्टरनून रंजन टेक्स गोपी एंड हेमा फिशिंग। सो इधर कितना नाम दिया हुआ है? किसी किसी का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो नाम केवल अंडरलाइन करना, दैट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड, ओके। किसी के बारे में या किसी को हम बताते हैं किसी के बारे में, वो नेमिंग वर्ड होते हैं। रंजन्स टीचर मिस्टर कॉल इज दैट ट्रू? तो हियर कितना दो नेम दिया हुआ है, यू कैन फाइंड इट आउट एंड अंडरलाइन। हियर आल्सो हाउ मेनी नेम्स? 3 नेम्स आर हियर, 3 नाम दिया गया है, तो आप लोग उसका फाइंड आउट करके नाम अंडरलाइन करना। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है, आप लोग कर सकते हैं। कैन यू डू दैट? या आप लोग कर सकते हैं। Okay, listen to the list of words and repeat them aloud. Note the vowels sound. See here, अब लोग छोटे क्लास में आप लोग लर्न किया है वोवल साउंड को, ठीक है। ये साउंड, यू, ये साउंड, ई साउंड, ओके, आई साउंड, वो साउंड, यू साउंड वगैरह आप लोग लर्न किया है। तो जैसे ये बताएंगे तो आपको जोर से जब बोलेंगे आपको वो साउंड निकल आएगा। ऑल, ओके, ऑल, चल, इल, फुल, फॉल, वेल, हिल, bull. So here you find the a sound here, e sound here, I sound here, and u sound here. Okay, so these are the vowels. Vowels क्या है? a, e, I, u. These are vowels. Okay, and when we tell it louder, we will get the sound of the vowel. Okay, so जोर जोर से आप लोग बोलना, ठीक है। Here also look at the word in the box given below. Which word can go in the list to the previous page? Which word cannot go in the list? So here देखो यहाँ कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैलेंस है दो जगह है, उसको हम क्या कर सकते हैं? फिल अप कर सकते हैं। तो इसमें ये साउंड है, आई साउंड है, ई साउंड, यू साउंड, सभी साउंड यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैचिंग के लिए ऊपर लिख सकते हैं। ऑल, फॉल, देन वी हैव call and tall. See, call, down here, see, tall. Got it? See, tall, call. ये A साउंड है। और E साउंड में क्या क्या है नीचे? E साउंड में आपको या bell, then fell. Okay, can we write it here? यहाँ दो साउंड है, bell, फिर क्या है? fell, या E-double-L, fell। और तीसरा थर्ड रो में क्या है? ill और ill, देन बाकी what else? या chill। और क्या है? आप लोग देख लो, आई साउंड में क्या क्या है? या will। ओके, हियर क्या क्या लिख सकते हैं? chill, then we have will। लिख रहे क्या? नहीं लिखना, ठीक है, पूरा कॉपी बुक में लिखना, ठीक है। देन वी हैव पुल, बुल, नीचे फाइंड कर लो।
फुल, बुल, और क्या है, या डल भी है और फुल भी है। ओके, हम लिखेंगे फुल और या डल। Finish? Okay. Here, do you know the name of other things that people sit on? Here are 4 things that people sit on. What are they? The letters are not in the correct order. See, here इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, लोग बैठने के लिए जो यूज करते हैं उसका नाम यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, इधर कुछ नाम दिया हुआ है लेकिन ये जम्बल्ड वर्ड है, लेकिन हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे, सीधे लिखेंगे तो इसका नाम हमें मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। या दिस इज चेयर। ओके, ये आप लोग इसको CHAIR chair. Okay. Here, what is that? Yes, fine. Yes, SOFA. Sofa. Okay, sofa ये बैठने के लिए यूज करते हैं। और here we can write STWOL, stool. Yes, TWOL, stool. Here BENCH, bench. ओके, BENCH, bench. ओके, सो ये आप लोग, क्योंकि ये जम्बल्ड में लिखा है, मतलब कि हम प्रॉपरली लिख रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ ऑल द थिंग्स अबव, कैन यू ऐड अदर नेम्स ऑफ द लिस्ट। सो इसके अलावा दूसरा कोई भी आप लोग ऐड करके भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारे समझ गए, तो आप लोग इसको अपने बुक में लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, गॉट इट।